سیاسی میدان میں ایک اور پنڈورا باکس کھل گیا۔ مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا مولانا فضل کچھ لوگ دھاوے کے حامی تھے، چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو لڑائی جھگڑے سے بچایا۔ ان کا کہنا تھا نواز شریف ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو بغاوت میں گرفتار کروانا چاہتے تھے۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کے انکشافات نے سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا ہے۔ سیاسی رازوں سے پردہ اٹھنے سے کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن ہر کوئی سوچ رہا ہے سیاست سے آؤٹ چودھری صاحب کو آخر اندرونی کہانی کیسے پتہ چلی۔ ایک انٹرویو میں چودھری شجاعت حسین نے کہا عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس وقت حالات کیا ہوں گے۔ ایک طرف پولیس تھی اور دوسری طرف مدارس کے طلباء مولانا فضل الرحمان کے آرڈر کا انتظار کر رہے تھے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ مولوی صاحبان اور پولیس چند قدموں پر کھڑے تھے، لیکن لڑائی نہیں ہوئی۔ چودھری شجاعت حسین نے یہ بھی بتایا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی ملیحہ لودھی کو بغاوت کے کیس میں گرفتار کرنے کا کہا تھا۔ میں نے اختلاف کیا اور کہا کہ اس اقدام سے صحافی برادری اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں اچھا تاثر نہیں جائے گا اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ چودھری شجاعت نے عمران خان کو بھی مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو تاریخ سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بات چیت بند ہونے سے معاملات سلجھتے نہیں بلکہ مزید الجھ جاتے ہیں۔ اپوزیشن میں دم خم نہیں، وہ عمران خان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم 5 سالہ مدت پوری کریں گے، شیخ رشید نے پھر پیش گوئی کر دی۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد جھاڑو پھرنے جا رہا ہے۔ ایک بار پھر شہباز شریف کو اپنی پارٹی کا آدمی قرار دیتے ہوئے کہا وہ جیسا میں کہوں گا ویسا ہی کریں گے۔ عمران خان 5 سال پورے کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس اپوزیشن میں کوئی دم نہیں ہے۔ یہ اپوزیشن جو ہے اگر ان میں دم ہوتا تو یہ 2 سال کوئی سوائے ٹاک شو کرنے کے ان میں کوئی سکت نہیں ہے۔ اور جس دن ML1 بن گیا اور جس دن ریلوے ٹریک کھڑا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں عمران خان کے دور کا ایک انقلاب ہوگا۔ سندھ حکومت کے وزیر سعید غنی کی پھر تحریک انصاف پر کڑی تنقید۔ انہوں نے کہا چینی اسکینڈل میں 300 ارب سے زائد کا ڈاکہ ڈالا گیا، حکومت چینی اور پیٹرول مافیا سے ملی ہوئی ہے۔ سب کچھ مافیا کو چھپانے کے لیے ہو رہا ہے۔ قومی ایئر لائن پر حکومت نے خود دنیا بھر میں پابندی لگوائی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو بین کر دیا گیا، تقریباً یورپ نے بند کر دیا، کل امریکہ نے کر دیا، اس سے پہلے مختلف اور ممالک نے اور خطوں نے اس کو بند کر دیا۔ اتنا بڑا نقصان شاید پاکستان کی تاریخ میں پی آئی او کو نہیں پہنچا ہوگا۔ پوری دنیا میں پیٹرول ملتا رہا، خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا جہاں لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا تھا۔ پیٹرول مافیا ہے، انہوں نے پاکستان کے غریب لوگوں کی جیبوں پر کتنے اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ مافیاز کے خلاف ہے اور ہم نے کمیشن بنایا اور ہم نے یہ کچھ کر دیا، بڑا اس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ دوسری طرف کارروائی کچھ نہیں کی، جہانگیر ترین کو باہر جانے دیا، اور پھر ان کے ہی لوگ، ان کے ہی لیڈرز، ان کے ہی کیبنٹ کے ممبرز اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے کہ جی جو یہ کمیشن بنا تھا اس کے اندر یہ فلاز تھے، وہ فلاز۔ اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے سندھ میں کرپشن اور زرداری کو کورونا سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا پولیس آفیسر راؤ انوار کے پیچھے بھی آصف علی زرداری کا ہاتھ تھا۔ JITs کے بعد انصاف کے نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا۔ یہ موجودہ حکومت صرف پاکستانی قوم کو نہیں دنیا کو دھوکہ دے رہی۔ سندھ میں الزام کی سیاست ختم نہ ہو سکی، صوبائی وزراء وفاق پر تنقید کر کے نہیں تھکتے، کھلاڑی بھی صوبائی وزراء کو جواب دینے میں لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کی تنقیدی وار کا جواب دینے کھلاڑی بھی میدان میں آئے اور سندھ حکومت پر لفظی گولہ باری کی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے توپوں کا رخ سندھ حکومت کی طرف کرتے ہوئے کئی سوالات داغ ڈالے۔ بولے نثار مورائی ڈاکٹر ہیں، ان کو فشر مین کوآپریٹو سوسائٹی کا چیئرمین کیوں بنایا گیا؟ سعید غنی اور BMW بتائیں مرتضی بھٹو کے قاتلوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ راؤ انوار کیوں باہر ہیں؟ متاثرین کو انصاف کون دے گا؟ فردوس شمیم نقوی نے سعید غنی کے بیانات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عزیر بلوچ کو سابق صدر آصف علی زرداری کی حمایت حاصل تھی۔ جب JIT بنتی ہے تو قابل افسران کا اس میں تقرر ہوتا ہے۔ JITs کے بعد انصاف کے نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ 2006 کے بعد ہر شوگر مل جو سندھ میں بکی آخر میں جا کے کدھر ملتی ہے؟ یا اومنی گروپ یا زرداری گروپ۔
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان نے بھی سندھ سرکار پر تنقید کی برسات کر دی۔ پی آئی اے کو تباہ کرنے میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں پی آئی اے کو زمیں بوس کرنے والے آج مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ 66 جعلی لائسنس آپ ہی کے کرپشن زدہ ہاتھوں سے جاری ہوئے۔ شہباز گل نے کہا سیاسی بھرتیاں کر کے پی آئی اے کو تباہ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ صرف ایک ادارے کی بات نہیں، ہر ادارے کی یہی کہانی ہے۔ 180 لائسنس آپ کے چہیتے مسلم لیگ نون نے ایشو کیے۔ پی آئی اے میں سابقہ حکمرانوں نے گند کو ہم صاف کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم مافیاز کے خلاف ہے اور آپ پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ملک میں جاری سیاسی ہنگامہ خیزی بیان بازی کی وجوہات آخر ہیں کیا؟ اس وقت ملک بھر میں سیاسی بیان بازی عروج پہ ہے۔ پی آئی اے کا معاملہ ہو، پیٹرول کا معاملہ ہو، مہنگائی کا معاملہ ہو، اس وقت سیاسی بیان بازی عروج پہ ہے۔ پی آئی اے کو تباہ کرنے میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے، یہ کہہ دیا ہے ڈاکٹر شہباز گل نے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پی آئی اے کو زمیں بوس کرنے والے آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ 66 جعلی لائسنس آپ کے کرپشن زدہ ہاتھوں سے جاری ہوئے، سیاسی بھرتیاں کر کے پی آئی اے کو تباہ کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم رضا صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی۔ سر، موجودہ سیاسی حالات میں کیا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں؟ کس جانب یہ سیاسی حالات اشارہ کر رہے ہیں؟ پاکستان کی سیاست میں بدلاؤ تو صرف بیان بازی کی حد تک ہی آتا رہتا ہے، کبھی اس میں نرمی آتی ہے، گرمی آ جاتی ہے، کبھی کریکٹر چینج ہوتے رہتے ہیں کہ الفاظ کم و بیش وہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہ جب سے یہ بجٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے ایک دوسرے کے صرف پول پٹیاں کھولی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کی جی آئی ٹیز نکالی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کی جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو باہر لے کر آیا جا رہا ہے۔ اس کے سوا اور ہو کیا رہا ہے، اور وہ ساری وہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو سب کے علم میں ہے۔ اب یہ ہے کہ بس ایک دوسرے کے خلاف اس موقع پر لائی جا رہی ہیں کہ جب ملک کے عوام کو کورونا کی وبا کا سامنا ہے، ملک کے عوام کو مہنگائی کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا ہے، کہ ملک کے عوام کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ملک کے عوام کو جو خوراک کی کمی ان سینس کہ مہنگائی کی صورت میں جو کی جا رہی ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر آپ دیکھیں وہ حکومت کے افراد ہوں یا اپوزیشن کے، دونوں جانب سے جس طرح سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اپنے عوام اور اپنے ووٹر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس میں یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے صرف اور صرف بیان بازیاں وہ ہو رہی ہیں جس کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ حاصل صرف ایک ہے کہ ٹائم گیم کریں اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اس کے یعنی کہ جو بیک فٹ پہ جا کے پردے کے پیچھے جا کے آپ چیزیں آگے بڑھاتے جاؤ اور بس بیان بازی لے کے جاؤ تاکہ جو اصل مسائل ہیں اس کی جانب کوئی توجہ نہ دے سکے۔ اسی لیے بار بار پینڈورا باکس کھولے جا رہے ہیں۔ اور چودھری شجاعت کا اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آنا، اگر آپ دیکھیں ماضی میں پہلے انہوں نے فیبروری میں بھی کہا تھا، اسٹیٹمنٹ دیا تھا، بہت بڑا اسٹیٹمنٹ تھا کہ 3 ماہ کے بعد حالات ایسے ہو جائیں گے کہ کوئی وزارت عظمیٰ کا تاج اپنے سر سجانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے اب سے 1 ماہ پہلے جو صورتحال چل رہی ہے، جو پارلیمنٹ میں وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہے کسی اور کے پاس ہمارے سوا، تو یہ میسج ایک دوسرے کو پاس آن کیے جا رہے ہیں بس کہ ہمیں تمہارا پتہ ہے اور تمہیں ہمارا پتہ ہے، اور یہ بھی مفاہمت کا ایک سلسلہ ہی ہے۔ یہ سارے اسٹیک ہولڈر یکجا ہیں، صرف بیان بازی کی حد تک یہ سلسلہ چلے گا اور اس کے علاوہ کچھ آگے بڑھتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ صحیح۔ ندیم صاحب، اپوزیشن کی مخالفت تو سمجھ آتی ہے، حکومتی اتحادی جماعتیں کیوں دور ہوتی جا رہی ہیں؟ بات وہ ہے کہ اگر ملاقات کا موقع نہیں دیں گے وزیر اعظم کسی کو ان سے، تو اس لیے یہ سب چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب بجٹ منظوری کا وقت آیا تھا تو اسی لیے اتحادی جماعتوں کی طرف سے یہ الزامات لگنے لگے آپس میں ایک دوسرے کے عزیر کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں کی کہ ایک تو سلسلہ یہاں لاہور میں چل رہا ہے، ایک اسلام آباد میں، اور ایک جو لندن جو پاکستان کی سیاست کا مرکز ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی گو کہ خاموشی کے ساتھ وہاں بھی
सियासी एक्टिविटी चल रही है, गो के वो मंजराम पे नहीं आ रही हैं। तो वो ऐसी सूरत में हो रहा था कि जब वजीर आजम जब उनको जरूरत थी वोटों की, तो एक एक आदमी उनके पास पहुंचा, मुलाकातें भी की, गले में पार्टी का झंडा भी डाला, और उसके बाद मुलाकातें नहीं हुई थी। बजट मंजूरी वाले दिन अगर आप देखें कितने अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें की, उनको वक्त भी दिया है, तो वो मौका निकल गया। उसके बाद फिर मामलात उसी तरह से आप देखें चल पड़े, कोई वो बातें नहीं हो रही हैं। तो वजीर ये इनकी पंजाब की साइड से ये जो चीजें आ रही हैं चौधरी शुजात की, ये भी सिलसिले की कड़ी है। अपने आप को थोड़ा सा वो ये नहीं होता जैसे वो पॉपअप, जैसे आप जो लैपटॉप या कोई चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कोई भी सोशल मीडिया की चीज आती है तो पॉपअप करती हैं चीजें, तो वो भी बस सियासत में भी कुछ इसी तरह की चीजें हो रही हैं और ये चलेंगी, खत्म हो जाएगी, कल दूसरा बयान आ जाएगा। लेकिन जो अवाम जो महंगाई से पिस रहे हैं, जो अवाम जिनको इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर नहीं है, वो उसी तरह से पिसते रहेंगे और इनका काम ऐसे ही चलता रहेगा। सर बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि चौधरी शुजात का आपने जिक्र किया। सर परवेज इलाही साहब एक्टिव थे, अब चौधरी शुजात साहब एक्टिव हैं, फिर हर दूसरे रोज कोई ना कोई बयान वजीर आजम की पॉलिसीज पर तनकीद और फिर वार्निंग तक देते हमने देखा भी। सर ये बताएं कि डोर हिल कहाँ से रही हैं? ये बड़ा बेहतरीन सवाल है आपका, डोरें कहाँ से हिल रही हैं। ये डोर तो नजर आती है, हाथ नजर नहीं आते ना। आप देखें, अगर आपने पतंग आपने उड़ाई होगी, हमने पतंगे बहुत उड़ाई है, पेचे भी लड़ाए हैं। जो लोग देखने वाले होते हैं ना, उन्हें पतंग नजर आती है और समा उसकी डोर नजर आती है, क्योंकि धात की डोर इस्तेमाल की जा रही होती है। और वो जब भी देखें आप, हाथ पकड़ाई नहीं देते, जब डोर गर्दन पे फिरती है गर्दन कट जाया करती है। कितनी मौतें वाक़ हो गई, क्या आपने कोई हाथ देखा है? तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल है, डोर नजर आ रही है, पतंग नजर आ रही है, लेकिन हाथ उस डोर को लूज करने वाला और उसे खींचने वाला वो नजर नहीं आ रहा। गो के सबको पता होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। सही। नदीम रजा साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सियासी जमातों से माली गोशवारों की तफसीलात तलब। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को गोशवारों की तफसीलात 29 अगस्त तक जमा करवाने की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं ओन शराजी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन एक्शन सियासी जमातों से माली साल 2019-20 के माली गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को हिदायत की है कि सालाना आमदन, इखराजात, फंड्स के जराये की तफसीलात जमा करवाएं। सियासी जमातों के सरबराहान को ममनुआ जराये से फंडिंग न लेने का बयान अल्फी भी जमा कराने का कहा गया है। सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के फॉर्म डी पर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट शुदा तफसीलात जमा कराएं। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को फिर फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान की चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत आलिया ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर वफाक, सेक्रेटरी दाखिला, FIA और इंक्वायरी कमीशन अरकान को भी नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। इससे कबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स मालिकान ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चीनी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और रिपोर्ट दुरुस्त नहीं, कार्रवाई रोकी जाए। कोयटा की अदालत ने साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के बच्ची के अगवा में मुआवनत के केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोयटा ने पुलिस को सेनेटर सरफराज बुगटी को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया है। उन पर कोयटा की 9 साला बच्ची के अगवा में मदद देने का इल्जाम है। मारिया नामी बच्ची की नानी ने सरफराज बुगटी को अगवा के मुकदमे में नामजद किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर सरफराज बुगटी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस एहलकार का अनोखा कारनामा, नो पार्किंग के नाम पर ड्राइवर समेत गाड़ी लिफ्टर से उठा दी। कार सवार मिन्नतें करता रहा और लिफ्टर ड्राइवर अपनी कार्रवाई करता रहा। शहरी पुलिस एहलकार को मनाते रहे मगर इसने किसी की ना सुनी। CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सैयद हमाद आबिद ने DSP गुलबर्ग मुनीर हाशमी से रिपोर्ट तलब कर ली। DSP को जल्द अज जल्द इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। किसी भी एहलकार और शहरी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। शहरियों की इज्जत नफ्स को किसी सूरत मजरूह नहीं होने दिया जाएगा।
आपको बताएं कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस एहलकार का अनोखा कारनामा, नो पार्किंग के नाम पर ड्राइवर समेत गाड़ी लिफ्टर से उठा दी। कार सवार मिन्नतें करता रहा और लिफ्टर ड्राइवर अपनी कार्रवाई करता रहा। शहरी पुलिस एहलकार को मनाते रहे मगर उसने किसी की ना सुनी। सीटीओ लाहौर सैयद हमाद आबिद ने वाकये का नोटिस ले लिया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस एहलकार का अनोखा कारनामा, नो पार्किंग के नाम पर ड्राइवर समेत गाड़ी लिफ्टर से उठा ली। कार सवार फरियाद करता रहा और लिफ्टर ड्राइवर अपनी कार्रवाई करता रहा। शहरी पुलिस एहलकार को मनाते रहे मगर मुंह जोर एहलकार ने किसी की ना सुनी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन नकवी से। जी जैन, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये नो पार्किंग का बोर्ड है। गुलबर्ग के इलाके में हफीज सेंटर का इलाका है जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगाया गया है और वहां पे जब शहरी ने अपनी गाड़ी पार्क की तो जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सड़कों पर लिफ्टर तैनात किए गए हैं जिनमें रॉन्ग पार्किंग पे जो गाड़ियां हैं उनको उठा के जो है वो साइड पे किया जाता है और उसके बाद जो है वो चालान जो है वो किया जाता है। तो हमने देखा कि फुटेज में भी बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि एक कार सवार जो है वो गाड़ी के अंदर ही मौजूद है, जबकि कार सवार की परवाह किए बगैर जो लिफ्टर है उसने गाड़ी को उठा दिया है, जबकि जो वहां करीब खड़े शहरी थे उन्होंने भी जो लिफ्टर ड्राइवर है उसको मना किया कि वो गाड़ी को ना उठाए क्योंकि अंदर शहरी मौजूद है। जबकि शहरी की जानिब से भी मिन्नतें की जाने लगी जिसपे जो लिफ्टर ड्राइवर है उसने एक ना सुनी और गाड़ी को ड्राइवर समेत ही उठा दिया। अगर बात की जाए इस मामले पे तो अब जो है वो बाकायदा तौर पर सीटीओ लाहौर की जानिब से जो है वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया गया है और सीटीओ लाहौर सैयद हमाद आबिद ने वाकये का नोटिस लेते हुए डीएसपी गुलबर्ग मुनीर हाशमी से रिपोर्ट तलब कर ली है। डीएसपी जो है मुनीर हाशमी, उनको जल्द अज जल्द इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है और सीटीओ लाहौर का इस मौके पर कहना था कि किसी भी एहलकार और शहरी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। शहरियों की इज्जत नफ्स को किसी सूरत मजरूह नहीं होने दिया जाएगा। जी, शहरियों की इज्जत नफ्स को किसी सूरत मजरूह नहीं होने दिया जाएगा। जैन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे हैं। कराची वाले 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग से आजिज आ चुके हैं, लेकिन हुकूमत ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। नोटिस पर नोटिस लेकिन अमल दरामद सिफर। वजीर आज़म की जानिब से शहर इक़्तिदार में बिजली की तवील बंदिश पर नोटिस लेना भी किसी काम न आया कि इलेक्ट्रिक के कानों पर जू न रेंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात भी कई घंटे बिजली गायब रही। कराची में कहीं 8 तो कहीं 12 घंटे बिजली गायब होने की वजह से शदीद गर्मी में शहरियों को दिन में चैन है और न रात में सुकून। कराची में कुरंगी, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, मलीफ, लियारी, लांडी, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया समेत दीगर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर का कोई इलाका इस वबाल से महफूज नहीं। शहरियों का कहना है कि इन्हें अब तक इस आफत से रिलीफ नहीं मिल सका। शहर इक़्तिदार का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। शहरी और दई इलाकों में घंटों बिजली बंद होना मामूल बन गया। मुरम्मती काम का बहाना अलग बनाया जाता है। शहरियों की शिकायत सुनने को कोई तैयार ही नहीं। शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में आवाम की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। लाहौर और पेशावर में भी लोड शेडिंग अरूज पर है। चेयरमैन नेप्रा ने कहा है कि आपने बिजली की तलब का अंदाजा क्यों नहीं लगाया। आप जिम्मेदारी लें या ना लें, आप हमें फेल कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का यकसा टैरिफ मुकर्रर करने का भी इंदिया दे दिया। नेपरा तौसीफ फारूकी की ज़ेर सदारत नेपरा में के इलेक्ट्रिक के हवाले से अवामी समाअत हुई। नेपरा अथॉरिटी के तमाम मेंबरान और दीगर हुकाम ने शिरकत की। समाअत शुरू हुई तो वाइस चेयरमैन नेपरा सैफुल्ला चट्ठा का कहना था कि समाअत का मकसद के इलेक्ट्रिक के हवाले से बढ़ती हुई अवामी शिकायत को दूर करना है। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी ने बताया कि इस वक्त नेशनल ग्रिड से 730 मेगावाट बिजली मिल रही है। इससे ज्यादा बिजली ली तो सिस्टम में खराबी हो सकती है। बिजली की पैदावार के लिए हमारे पास फर्नेस ऑयल और गैस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इन दोनों चीजों की किल्लत की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। कराची से मुंतखब एमएन आफ्ताब सिद्दीकी ने वीडियो लिंक के जरिए इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन नेटवर्क बहुत खराब है। 2 दिन की बारिश से 6 अफराद करंट लगने से जान की बाजी हार चुके। के इलेक्ट्रिक से पूछा जाए कि इसका जिम्मेदार कौन है। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने CEO के इलेक्ट्रिक से कहा कि आपने बिजली की तलब का अंदाजा क्यों नहीं लगाया। आप जिम्मेदारी लें या ना लें, आप हमें फेल कर रहे हैं। निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में बेहतरी नहीं आ रही। 11 महीने से आपने ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड ही नहीं किया। आपको वफाक अजाफी बिजली फराहम कर भी दे तो आपकी सलाहियत नहीं कि वो बोझ उठा सकें। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम और पैदावार समेत तमाम तफसीलात फराहम करने का हुक्म भी दे दिया और कहा कि सब कुछ बंद है तो ये सूरत हाल है।
अगर स्कूल, कॉलेजेस और शादी हाल खुलेंगे तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने वीडियो लिंक पर इजहार ख्याल किया और कहा कि नेपरा बतौर रेगुलेटर अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने में नाकाम हो चुका है। दुराने समात के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी 2 बार समात छोड़कर चले गए, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने इजहार बर्मी करते हुए कहा कि हम लोग अपना वक्त निकाल कर अवामी मसले सुनने यहाँ बैठे हैं। जिसके बाद कराची में लोड शेडिंग के हवाले से नेपरा ने समात मुकम्मल कर ली। इस मौका पर चेयरमैन नेपरा का कहना था कि नेपरा तमाम हकाइक और तजावीज का जायजा लेकर फैसला सुनाएगी। समात मुकम्मल हुई तो तमाम हकाइक को जांचने के बाद माहिरीन पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। नेपरा के मुताबिक कमेटी फौरी तौर पर कराची जाके मामलात की इंक्वायरी और फिर जामे सिफारिशात नेपरा को पेश करेगी, जिसके बाद अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। शहर कायद के बासियों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार नेपरा हेडक्वार्टर पहुँचा दिए। अब इन पर मजीद क्या कार्रवाई होगी, नेपरा तमाम तजावीज़ का जायजा लेगी और जायजा लेने के बाद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का क्या फैसला किया जाता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरामैन अरशद हुसैन सत्ती के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। गर्मी आते ही इस्लामाबाद में बिजली गायब। शदीद गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग में शहरी बिलबिला उठे। शहरी कहते हैं तब्दीली के दावेदार हमारी मुश्किलात का तदारुक करें। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद काज़मी। बढ़ती गर्मी के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर समेत गौरी टाउन के मुख्तलिफ फेजेज में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की गैर एलानिया बंदिश के बायस बाज मकामात पर पीने के पानी के प्लांट्स भी बंद हो जाते हैं, जिससे शहरियों को पीने के पानी के असूल में मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग जो है रात में, दिन में 1 घंटे में 2 दफा जा रही है, 3 दफा जा रही है। तो हमारा जीना, किसी के घर में अगर जनरेटर नहीं है, UPS नहीं है, तो उसके लिए रात को बच्चों के लिए सोना बहुत मुश्किल का सामना आ रहा है। तो यही हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली लोड शेडिंग की तरफ मुतवज्जा दें। शहरियों ने शिकवा किया कि कम वोल्टेज से इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत खराब होने लगी हैं। आइस्को को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो पता है बंद है। अब ऑनलाइन बगैर बिजली के कोई कुछ भी आप नहीं कर सकते। लोग घरों में वैसे भी बाउंड हैं। रात को मच्छर होते हैं और गर्मी होती है, तो ये गरीब लोग है, हर बंदे के पास ना कोई जनरेटर है, ना कोई इस तरह कोई सिस्टम है। आइस्को हुकाम कहते हैं कि चट्टा बख्तावर के अलावा किसी भी इलाके में लोड शेडिंग नहीं हो रही। एक जानब सख्त गर्मी तो दूसरी जानब बिजली की कई घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी कहते हैं हुकाम बाला नोटिस लेकर गैर एलानी लोड शेडिंग के साथ साथ बिजली के वोल्टेज का इशू भी सॉल्व करे। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतवक्के आटा बहरान के खतरे से निमटने के लिए सरकारी गंदम फौरी तौर पर मार्केट में लाने का हुक्म दे दिया। गंदम के मुतवक्के बहरान से निमटने के लिए वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को खुसूसी हिदायत करते हुए सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम को मार्केट में लाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गंदम बहरान पर ब्यूरोक्रेसी का मशवरा नजरअंदाज कर दिया। गंदम की पैदावार कम होने की वजह से अफसरान ने सरकारी गंदम अक्टूबर में मार्केट में लाने का मशवरा दिया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप फौरी तौर पर गंदम मार्केट लाएं और सस्ते बाजार और पॉइंट्स बनाकर लोगों को सस्ता आटा फराहम किया जाए। अक्टूबर में सूरत हाल देखी जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो सूरत हाल के मुताबिक गंदम दरामद कर लेंगे। मुसलसल 5वां हफ्ता हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। हालिया हफ्ते महंगाई में 0.98% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारिया शुमारियात ने महंगाई में हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 7 रोज में 18 अशिया जरूरियत की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में ₹2.14 फी किलो इजाफा हुआ। चीनी 80 रुपए 82 पैसे से 82 रुपए 96 पैसे फी किलो हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चीनी 24 पैसे फी किलो महंगी हुई थी। इदारा शुमारियात ने बताया कि टमाटर फी किलो 29 रुपए महंगा हुआ और 96 रुपए 50 पैसे फी किलो का फरोख्त हुआ। प्याज 4 रुपए फी किलो और 200 ग्राम सुर्ख में 16 रुपए महंगी। अंडे फी दर्जन 4.5 रुपए महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चिकन, बड़ा गोश्त, ताजा दूध, छोटा गोश्त, चावल, गुड़, दाल, चना सब महंगे हुए। एक हफ्ते में 11 अशिया की कीमतों में कमी हुई। दाल मूंग 10 रुपए फी किलो, केले फी दर्जन 5 रुपए सस्ते हुए। आटे का 20 किलो का थैला 6 रुपए। LPG सिलेंडर 6 रुपए सस्ता हुआ। एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। पेशावर में टमाटर की कीमतों की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। मार्केट में टमाटर नायाब होने से चंद दुकानदारों ने मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह।
लाल टमाटरों ने कर दिया शहरियों को मजीद लाल। 30 रुपए में बिकने वाला टमाटर मार्केट में 70 से 100 रुपए तक बिकने लगा है। जो सबसे पहले तो टमाटर जो 20 रुपए 30 रुपए किलो था, जैसे ही ईद कुर्बान करीब आ गए तो टमाटर 80 रुपए 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं सर। पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, हर एक गरीब आदमी सर यहाँ पर फिर रहे हैं और टमाटर बहुत महंगे, हर एक सब्जी के रेट सर ऊपर हो गए। टमाटर तो बहुत महंगे हो गए, पहले हम 100 रुपए दड़ी ले जाते थे, अभी 350 रुपए पर है, मगर फिर भी कमजोर टमाटर अच्छे नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि ये टमाटर जरा सस्ते कर लें। दूसरी जानिब जहां टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ तो वहीं पर सब्जी मंडी में टमाटर ही गायब हो गया। चंद मखसूस दुकानों पर टमाटर मौजूद होने से दुकानदारों ने भी मौके से फायदा उठाते हुए मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए। ये हमारी अपनी गफलत है कि हमने इस हुकूमत को इक़्तिदार में लाए हैं। 80 रुपए किलो टमाटर है, सब चीज़ें देखें, कोई चीज़ें हमारी अप्रोच में नहीं है, सब चीज़ें महंगी आसमान से बातें कर रही हैं। मुश्किल लगता है कि यह महंगाई मज़ीद कम हो सकेगी। महंगाई में पिसती हुई आवाम पहले से ही मुश्किलात से दो चार थी, मगर अब टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों ने मजीद आवाम पर बोझ डाल दिया है। पेशावर की सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत 70 से 100 रुपए तक जा पहुंची है। जिले इंतजामिया की तरफ से किए गए दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी महंगाई उरूज पर है। रोज बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे जहां से वली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। भिंडी 130 रुपए किलो, अरबी 150 रुपए फी किलो, टमाटर, आलू और प्याज के अलावा फलों में केले 100 रुपए दर्जन, खुबानी 200 रुपए किलो, आलू बुखारे 320 रुपए किलो तक कीमतें सुनकर गरीब आदमी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गोश्त खाना तो दूर की बात, अब सब्जी भी खाना मुश्किल हो गई है। हर चीज सब्जी महंगी जा रही है और गरीब आदमी के पहुंच से दूर है। गरीब आदमी खा ही नहीं सकता सब्जी लेके। दूसरे फ्रूट हैं जैसे आलू बुखारा है, अब तो ये बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि सोने के दाम। अब 320 रुपए किलो आलू बुखारा, वो भी क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है। क्या बच्चों को लेके जाएं? लॉकडाउन की वजह से वैसे ही कारोबार इतने ठप हुए हुए हैं। गरीब आवाम जो है बहुत मुश्किल हो गया है उसका रोजमर्रा की अशिया खरीदना। हुकूमत इस पे कंट्रोल करे। शहरियों ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब की एक वक्त की रोटी भी छीन ली है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां रमजानुल मुबारक के महीने के अलावा पूरे साल नजर ही नहीं आती हैं, जो इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। हुकूमत को चाहिए कि हैदराबाद शहर में मुनाफाखोर सब्जी और फल फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके सब्जी और फलों की कीमतों में कमी लाकर अवाम को रिलीफ फराहम करें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। डेरा इस्माइल खान में फल, सब्जियों, गोश्त समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं, जबकि जिला इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन सलीम। डेरा इस्माइल खान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। सब्जियां, फल समेत रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ जाने की वजह से गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। महंगाई की लहर ने सफेद पोश मुलाजिमीन समेत गरीब आवाम में सख्त परेशानी और मायूसी दो चार कर दिया है। डेरा इस्माइल खान सिटी समेत दीगर इलाकों में सब्जियां, फल, दूध, दही और गोश्त, अंडे समेत दीगर अशिया खुर्द नोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। खसूसी टमाटर की उड़ान आसमानों तक पहुंच गई है। फल, सब्जियां, आलू और प्याज, टमाटर समेत दीगर कीमतें भी गरीब आवाम की कुव्वत से बाहर हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया ने चुप सांस ले रखी है और महंगाई के कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नहीं उठा रहे हैं, जबकि दुकानदारों ने भी आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। सियासी व समाजी और अवामी हलकों ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन अफरा से आपके साथ मोहसिन सलीम, साइड टीवी, डेरा इस्माइल खान। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। तीनों रहनुमाओं की मुलाकात बिलावल हाउस में हुई। तफसीलात जानेंगे मज़ाहिर सईद से। मज़ाहिर बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की जो है वो अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे जो है वो जारी रही। इस मुलाकात में जो है मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं और उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो है वो सबसे पहले जो है वो कोरोना की वबा जो है वो बहुत तेजी से फैल गई। उसमें भी ये शिकवा जाहिर किया गया है कि हुकूमत जो है वो सही इक़दाम
नहीं कर सकी। ये हमारे जो जराए उस बात की तस्दीक करें, जबकि दूसरे जो दीगर मसाइल हैं पानी बिजली के, उस पर भी जो है वो काफी देर तक जो है वो तबादला ख्याल किया गया और सियासी सूरत हाल में भी जो है वो आने वाले दिनों में कोई नई पेशरफ्त नजर आती है। ये हमारे जराए बिलावल हाउस के इस बात की तस्दीक करते हैं। बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद। और अब खबरें शामिल करें मौसम की, तो महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। श्रीनगर, बारामूला में मौसम खुश्क, जबकि जम्मू के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम जोब, बारखान, लोरालाई और मुसाखेल में बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, अटक, जहलुम, चकवाल, रावलपिंडी, मरी, टैक्सिला, नारवाल, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब और फैसलाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। लिया, बखर, मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर में भी आंधी चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, वादी नीलम में मौसम अबरालूद रहेगा और हल्की बारिश भी हो सकती है। इसी तरह श्रीनगर और बारामूला में बारिशों का सिलसिला अतवार से शुरू होगा, जबकि जम्मू में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। इधर सिंध सूबा के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कराची, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और मिट्टी में हल्की बारिश का इम्कान है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।